Good afternoon, everyone. And these are the three questions that we have to discuss. The first is isocon can be convex, linear, or as you can see on your screen, isocon can be convex, linear, or L-shaped. What does each of these shape tells about you the nature of the production function, right? So basically, isocons is nothing but ये different combinations को दिखाते हैं inputs के जो same level of satisfaction देते हैं, and it has various shapes, right? It has various shapes. It can be convex, it can be linear, or it can be L shape, right? And the first is, as we discussed, as you can see on the screen, we have convex shape curve, right? Convex basically shaped shows the diminishing marginal rate of substitution. The rate of substitution means the rate at which one input is substituted for another input, right? So marginal rate of technical substitution जब decline करता है, when it got diminished, so we have the shape of convex shaped isocon, right? So it is the shape which shows the diminishing marginal rate of substitution. And convex shape ये दिखाता है कि ये कोई perfect substitutes नहीं है, and that's why there are diminishing return to increasing one input while holding the other, right? So and the second is linear isocont. Linear isocont हमें दिखाता है constant marginal rate of substitution, जहाँ पे हमें constant marginal rate of substitution नजर आता है, और यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विल बिकम कांस्टेंट, और यहाँ पे ये दिखाता है कि एक कांस्टेंट लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है किसमें, इनपुट्स में आपस में, ठीक है। एंड द प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एग्जिबिट constant return to C, right? And the last is L-shaped curve, right? L-shaped indicate, ये हमें indicate करता है कि input जो है वो perfect substitutes हैं आपस में, and उसके बाद एक point के बाद वो fixed नहीं हो सकती, right? And cannot be substituted any further. So there is a fixed amount of inputs. There is fixed quantity of input of both the inputs, right? एल शेप जो है स्टार्ट हमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी दिखाता है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एक इनपुट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता दूसरे इनपुट के बिहाफ पे, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्पेसिफिक इनपुट रेशियो in L-shaped curve, right? So this is the first question that we have discussed. Now the second is, how does the presence of unskilled labor in a country affect the foreign exchange rate and overall economic performance, right? So basically किसी भी कंट्री में एक अनस्किल्ड लेबर, प्रेजेंस ऑफ अनस्किल्ड लेबर जो है उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट पे और ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे भी, ठीक है। सबसे पहले जो अब हम ये देखते हैं कि लेबर कॉस्ट पे, फर्स्ट इज द लेबर कॉस्ट इन कॉम्पिटिटिवनेस, राइट? सो नाउ वी विल सी द इफेक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? सो अगर अबंडेंस ऑफ लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है किसी कंट्री में, तो इसका मतलब यह है कि वेज कॉस्ट जो है वो कम रहेगी, राइट? और इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और ज्यादा प्रोडक्ट्स और ज्यादा सर्विसेज अफोर्डेबल मतलब बनाई जा सकती हैं, ज्यादा प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सकता है, और लोअर लेबर कॉस्ट जो है वो ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी, और ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में मदद करेगी इंडस्ट्रीज की, राइट? एंड अल्टीमेटली इट विल हैव एन पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमिक, इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से राइट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, जनरेट होगा, ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा थ्रू एक्सपोर्ट्स, राइट? और हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रेड बैलेंस पे भी इफेक्ट करेगा हमारे, जब अनस्किल्ड लेबर होगी, तो अगर कंट्री के पास अनस्किल्ड लेबर है तो वो एक मेजर एक्सपोर्टर बन के निकलेगी बिटवीन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इट कैन इंक्रीज experience an increase of demand also for its currency. So ultimately कहीं ना कहीं उसकी currency appreciation होगी, इसकी value, the value of the home country currency will definitely increase. So it will have a positive effect on the foreign currency value, and it will have a positive trade, it will have a positive impact पड़ेगा उसके trade balance पे, because export will increase in comparison to import, and it will contribute to more economic growth and stability, right? And but it's not like that. अगर एक 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 पॉइंट के बाद अगर ज्यादा अप्रिशिएट करेंसी होती है तो इसके अलग कोजेस होते हैं,
एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद वो इफेक्ट कम रहेगा। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो, सॉरी आई मीन अनस्किल्ड लेबर जो है वो कैसे इफेक्ट करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। वो क्या करेगा, हाई लेवल ऑफ इनकम इनक्वालिटी जो है वो कई बार डिस्पैरिटीज क्रिएट करती है स्किल और एजुकेशन में, और इसके सोशल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट इम्प्लीकेशंस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। सोशल अनरेस्ट भी क्रिएट होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है, राइट, रिगार्डिंग द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड करेंसी वैल्यू ऑल्सो, राइट। एंड अल्टीमेटली अगर ज्यादा इनकम इनक्वालिटी होती है वो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर होगी तो देयर विल बी अ लार्ज बिग चांस ऑफ इनकम, हायर अमाउंट ऑफ इनकम इनक्वालिटी ऑफ रिच एंड पुअर। सो अल्टीमेटली वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, सोशल कोहेजन पे इफेक्ट डालती है। एंड गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए इन इश्यूज को रिगार्डिंग दी ज्यादा इन इश्यूज को, इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहिए, इस पे पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए रिगार्डिंग टू स्टॉप दीज इश्यूज, राइट। सो बेसिकली उसके बाद ग्लोबल वैल्यू चेन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगी, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी हो सकता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। सो देयर आर वेरियस इफेक्ट ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन ऑल्सो, राइट। And the third question is compare and contrast the implication of budgetary deficit in developed and developing economies. So basically we will see, हम इसमें comparison भी करेंगे और हम इसमें contrast भी करेंगे, हम इसमें similarities भी देखेंगे regarding the budgetary deficit, right? So budgetary deficit is nothing but it is the excess of expenditure over revenue, right? That the excess of budgetary revenue over budgetary expenditure, the excess is called budgetary deficit. When you have more, when you are spending more and you are earning less, your revenue is less in comparison to your spending, your income. So in comparison to your revenue, your expenditure is more, so there will be a budgetary deficit। और इसका कहीं ना कहीं अलग अलग इफेक्ट होता है। इसको ही हम पहले हम सिमिलैरिटीज को देख लेते हैं, राइट। सिमिलैरिटीज को अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे इफेक्ट होता है। अल्टीमेटली अगर हम डेवलप नेशन या डेवलपिंग नेशन दोनों की बात करें तो ज्यादा बजट परसिस्टेंटली अगर बजटरी डेफिसिट होता है तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को बढ़ाएगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू उसको फाइनेंस करना पड़ेगा उस डेफिसिट को, और ये ज्यादा अपवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। और अगर ये प्रॉपरली मैनेज नहीं होगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा इकोनॉमी में अल्टीमेटली। सो दैट्स व्हाई ये हमें देखना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं अगर ज्यादा बजटरी डेफिसिट होता है तो अल्टीमेटली क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस बजटरी डेफिसिट को फाइनेंस करना है तो इट विल एब्जॉर्ब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अवेलेबल फंड। सो दैट्स व्हाई इट विल लीड लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, वो कहीं ना कहीं वो लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल create it will lead to less amount of capital, it will there will be less amount of capital left for the private business। so ultimately crowding out of private investment भी कहीं ना कहीं इसका इसकी एक सिमिलैरिटी है, चाहे डेवलप कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, राइट। और थर्ड जो सिमिलैरिटी हमें नजर आती है वो आती है डेट अकोमुलेशन पे, राइट। बजटरी डेफिसिट जो है वो कहीं ना कहीं डेट अकोमुलेशन को बढ़ाएगा, और हाई लेवल ऑफ डेट कैन बिकम अ बर्डन। एक बहुत हाई लेवल ऑफ डेट होगा तो वो बर्डन क्रिएट करेगा, और कहीं ना कहीं वो फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, फिजिकल पोटेंशियलिटी को इफेक्ट करेगा अल्टीमेटली। तो इसलिए दीज आर दी थ्री सिमिलरिटीज दैट वी हैव सीन, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डेट अकोमुलेशन एंड इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। अब हम डिफरेंसेस पे आते हैं। देयर आर आल्सो डिफरेंसेस regarding the implication of budgetary deficit on developing and developed and developing economies, right? So basically अगर हम बात करें तो जनरली डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो उनके पास एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट ज्यादा है, राइट। दे हैव इजियर एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, दे मे माइट बी एबल टू बोरो एट मोर फेवरेबल टर्म्स, उनके पास ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती है बोरो करने की। दे हैव मोर tools as their disposal, right? They as their disposal to manage the deficits, right? They to manage their deficit, they have more access to the market. So basically developed economies का access बड़ा होता है in comparison to developing nations, and कहीं ना कहीं ये जो है वो but अगर तो वो आसानी से अपने budgetary deficit को manage कर सकते हैं, right? लेकिन ये फैसिलिटी आपको यूजुअली कहाँ नहीं मिलेगी, वो डेवलपिंग कंट्रीज में आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज वो ज्यादातर जो उनका रिलायंस है
जो उनकी डिपेंडेंसी है वो डोमेस्टिक मार्केट में, उनकी डोमेस्टिक मार्केट यूजुअली कमजोर होती है, दे आर इट इज यूजुअली वीक इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज, so that's why their access to financial market is not, you know, it's not very broad, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो ज्यादा exaggerated नहीं होता है, वो कम होता है in comparison to developed countries, right? तो एक तो access to financial market हो गया। fiscal policy space की हम की भी बात कर सकते हैं, there is a fiscal policy space जो differences create करता है दोनों में regarding the implication of budgetary deficit। developed economies में ज्यादा fiscal policy का space होता है, they have more stronger fiscal policy, you know, space to manage their deficit, लेकिन because they have diversified economies, they have strong institutions also, और उनके पास ज्यादा काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसीज एफर्ट्स होते हैं, और लेकिन ये हम डेवलपिंग नेशंस में नहीं देखते हैं, राइट? डेवलपिंग नेशंस में यूजुअली क्या है, लेस फिस्कल स्पेस होता है, ठीक है, क्योंकि उनके वीक स्ट्रक्चर है, राइट? वीक स्ट्रक्चर है और लिमिटेड टैक्स बेस है और ज्यादा डिपेंडेंस है किस पे, नैरो रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज पे, राइट? नैरो रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज पे उनकी इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं दे हैव, यू नो, दे हैव लेस वीकर फिस्कल पॉलिसी स्पेस, राइट? तो एक डिससिमिलरिटी कहीं ना कहीं ये हो जाएगी। और द नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर ज्यादा परसिस्टेंट डेफिसिट अगर होता है डेवलप इकोनॉमी में, तो इट मे हैव वेरी इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ऑल्सो, कहीं ना कहीं कभी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट करता है कई बार, और कहीं ना कहीं कंट्री का जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होता है। इट डेवलपिंग इकोनॉमीज में हालांकि ज्यादा करेंसी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आपके बजट डेफिसिट आ रहा है, लेकिन अगर डेवलपिंग नेशंस में देखें तो हम ज्यादा, यू नो, एक्सचेंज रेट पे, क्योंकि वोलेटाइल एक्सचेंज रेट्स होता है किसमें, डेवलपिंग नेशंस में, तो इनका जो है अगर बजटरी डेफिसिट इंक्रीज करता है तो इसका इंप्लीकेशन कहीं ना कहीं इट विल लीड टू, यू नो, फिस्कल अनस्टेबिलिटी, इट विल हैव एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस, कैपिटल फ्लाइट होगा और कहीं ना कहीं करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी अल्टीमेटली। सो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि कुछ इंप्लीकेशन बजट डेफिसिट के कॉमन है डेवलपिंग नेशंस में, और कहीं ना कहीं जो स्पेसिफिक चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे फिस्कल पॉलिसी स्पेस हो, चाहे एक्सचेंज रेट डायनामिक्स हो, सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं, तो इनके भी कहीं ना कहीं इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड मैनेजिंग, यू नो, बजटरी डेफिसिट, इट्स रिक्वायर, यू नो, लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी की जरूरत है, बहुत ज्यादा, यू नो, पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस की जरूरत है, ठीक है, टू मेक यूज ऑफ योर पॉलिसी, राइट? सो इसलिए दीज आर दी डिफरेंट, यू नो, वेरियस कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। Right. So we have discussed, हमने तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया, ठीक है। आई होप you I understand, I hope you understand my explanation. Thank you.